All right, everyone. Welcome back. Let's start AS Chemistry Paper 1 multiple choice question of May, June 2024, variance 11. We have done variance 12. Let's start with variance 11. Question number 1. Sample X is added to water and made up to total volume of 200 cm3. So total volume is 200 cm3. This gives a solution of 0.1 mole per dm cube HCl. What is sample X? तो हमें वन बाय वन वर्किंग करनी पड़ेगी सबकी. So we have concentration, we have volume, so we can find moles. One into 10 divided by 1000. So moles हमारे पास आ जाएंगे 10 divided by 1000 is going to be 0.01 moles. Okay. अब 1000 cm cube में हमारे पास मोल्स हैं 0.1. ओके. सो अगर हमारे पास 0.01 मोल थे, so volume is going to be how much? Into 1000 divided by 0.1, so it's going to be 100. So ऑप्शन ए से मुझे 100 cm क्यूब मिल रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए 200 cm क्यूब. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. एग्जैक्टली इसी तरह से बी को भी देखेंगे, और मैं बात समझाने के लिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंपैरिजन इजी हो आपके लिए. So I know the concentration and volume, so I can find the moles. So 30 into 0.9 divided by 1000. 30 into 0.9 divided by 1000 is going to be 0.027 moles. So obviously 1000 cm cube में हमारे पास 0.1 moles हैं HCl के. So अगर हमारे पास 0.027 moles हैं, so how much volume we have? So 0.027 into 1000 divided by 0.1 is going to be 270 cm cube. And we are looking for 200. इसका मतलब this option is also incorrect. Let's talk about option C. 50 दिया हुआ है हमें, 0.4 गिवन है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे. So obviously I'll get moles, और moles हमारे पास कितने आ रहे हैं? 50 times 0.4 divided by 1000 is going to be 0.02 moles. So हमारे पास 1000 cm क्यूब में 0.1 मोल है HCl के. तो अगर हमारे पास 0.02 मोल्स हैं HCl के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? तो into 1000 divided by 0.1, so it's going to be 200 cm cube. और हमें 200 cm cube ही required था, which means C is going to be the right answer. Okay. Question number 2. A mixture of 10 cm cube of methane and 10 cm cube of ethane was sparked with an excess of oxygen. So सबसे पहले मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं. It will turn to carbon dioxide and water. मीथेन आपके पास 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास 1 मोल है. अगर आपने 10 cm क्यूब ऑफ मीथेन यूज किया है, सो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको 10 cm क्यूब मिलेगा. ठीक है. सेकंड, अगर मैं इथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, इट विल टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मैं यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ पर्पसली, बिकॉज आई नीड टू चेक इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
सो ये 1 मोल है आपके पास, ये 2 मोल है। अगर आपने 10 cm³ यूज किया था, so obviously volume of carbon dioxide is going to be 20 cm³ from here. So after the reaction, total volume of carbon dioxide from this mixture is going to be 30 cm³. और 30 cm³ इसलिए क्योंकि 10 cm³ मीथेन से मिला है, 20 cm³ मीथेन से मिला, तो mixture gives you 30 cm³ volume. Now let's read the question again. After cooling, the residual gas was passed through aqueous potassium hydroxide. By the way, ये जो रेजिडुअल गैस है ये आपकी एसिडिक गैस होगी, और इन दोनों रिएक्शन में जो एसिडिक गैस आपके पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बेसिकली एब्सॉर्ब बाय द एल्कीली, because it is an acidic gas. That indicates the third, वो कह रहे हैं what volume of gas was absorbed by the alkali. Since carbon dioxide का total volume 30 cm³ है, तो aqueous potassium hydroxide इस 30 cm³ of carbon dioxide को absorb कर लेगा. Consequently, C is going to be the right answer. Okay. Next, Z is a compound of two elements X and Y. Element X shows a very large increase between its fifth and sixth, and very large increase between fifth and sixth indicates that element X belongs to group 15. Because अगर फिफ्थ और सिक्स में सबसे ज्यादा गैप है तो इसका मतलब यहाँ शेल चेंज हुआ है, इसका मतलब these 5 electrons are removed from the valence shell, because 5 electrons are removed from valence shell. ठीक है. सो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक फास्फोरस, एक नाइट्रोजन है और एक फास्फोरस है. ओके, ये ग्रुप 15 है. अब इसमें क्वेश्चन को और रीड करते हैं. इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इट्स ग्रुप. तो यार इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट होगी और इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड लार्जेस्ट होगी. इसका मतलब एलिमेंट X is going to be phosphorus because इसकी second last ionization energy, second last first ionization energy, I mean to say. Okay, I hope analysis makes some sense to you. Next is element Y shows a very large increase between its sixth and seventh ionization energy. That indicates that element Y belongs to group 16. Because 6 valence electrons. Okay, so group 6 के जो एलिमेंट हैं उसमें एक ऑक्सीजन है और एक सल्फर है, राइट? Now let's read the last part of the question. It has the largest first ionization energy in its group. So obviously इसकी largest first ionization energy होगी. Okay. वो कह रहे हैं what is compound Z? Obviously अगर मैं फॉस्फोरस को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी. Either I'll get P4O6 which is phosphorus 3 oxide, or either I'll get P4O10 which is phosphorus, my bad, phosphorus 5 oxide. So in दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा. I think P4O10 is given, which means C is going to be the right answer. Okay. So इसका मतलब जो एलिमेंट Z है वो फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. Question number 4, which statement about this element is correct? अगर हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें 53 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें 53 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, and if I'll subtract 131 from 53 I'll get neutrons. So it's going to be 78 neutrons. So let me check what sort of composition is given.
ये कॉम्पोजिशन कहाँ गिवन है? 53 न्यूट्रॉन्स नहीं है, 78 न्यूट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ऑप्शन इज इनकरेक्ट। A negative ion means total electrons is going to be 54. So 54 electrons is right, but neutron is not 53, it's 78, which is why again it is wrong. Then a negative ion contains 78 neutrons, that's correct. And 52 electrons, that's wrong, because electrons after the gain of -1 charge 54 होंगे. So ये भी गलत. तो जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ये डी क्यों ठीक है ये देख लेते हैं. अ नेगेटिव आयन आयोडाइड हमेशा बनाता है. इसमें 78 न्यूट्रॉन्स हैं, दैट्स राइट. और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दैट्स करेक्ट. I hope it makes sense to you. I hope you get the logic, you get the point. Next, when solid aluminum chloride is heated, Al2Cl6 is formed. According to my lecture, this Al2Cl6 is basically dimer. और मैं Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं. That is the structure of Al2Cl6 we have done in the class. वो कह रहे हैं which bonding is present in Al2Cl6. By the way, this is called dative bonding, which is also called coordinate covalent bonding. So coordinate covalent bonding or dative bonding is correct. And this one is technically the covalent bond. So in this molecule, we have only two types of bonding, covalent and coordinate. So right answer is going to be an A. The structure of the sulfur dioxide molecule is shown. What is the shape of the sulfur dioxide molecule? First, we need to find out the hybridization of this molecule. Since we have two double bonds, so अगर मुझे hybridization determine करनी है तो bonds 2 लूंगा और lone pair 1 लूंगा central atom का. Total is going to be 3 lines draw करें. एक line s orbital, बाकी दोनों line p orbital, तो hybridization is sp2. Whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair with sp2 hybridization, angle is always 120, geometry is always planar, right? It's also called trigonal planar. So whenever one lone pair increases, angle 2.5 degree decreases, which means its angle is going to be 117.5 degree. And according, oh my goodness, 117, my bad, 117.5 degree. And according to my lecture, this is going to be non-linear shape. And that's what I've told you in the class. तो अगर इसकी डायग्राम आपको बनाने के लिए आएगी तो आप इसकी नॉन लीनियर शेप ज्योमेट्री, बैंड शेप ज्योमेट्री बनाओगे, just like water. So non-linear shape is going to be the right answer. Oh my goodness. What is the density of a sample of fluorine gas at 32 degrees Celsius and pressure? Assume fluorine behaves as an ideal gas under these conditions. So examiner is looking for the density. An examiner is giving you temperature and pressure. तो मैं क्या करता हूँ, इस टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड कर देता हूँ. सो मुझे टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा. So 273 and 32, 273 plus 32 is going to be 305 Kelvin. मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ. ये है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है. और मोल्स किसके इक्वल होता है? m/mr के इक्वल होता है. सो मैं इस वेरिएबल को उठाकर इस n की जगह पे प्लग इन करता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास PV इक्वल्स टू mRT/mr. मैं P और mr को इसी तरह से रखता हूं, इक्वल्स टू मास RT/V कर देता हूं. आप सब जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली डेंसिटी.
राइट। सो अगर ये डेंसिटी है तो इसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा PVMR इक्वल्स टू डेंसिटी। डेंसिटी को वैसे तो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं केमिस्ट्री में सिंपल यूज कर रहा हूँ। मुझे डेंसिटी निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी D इक्वल्स टू PMR अपॉन RT। सो मैं अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज प्लग इन करूंगा इन ऑर्डर टू गेट माय आंसर। प्रेशर मुझे दिया हुआ है 100,000 पास्कल इनटू एमआर ऑफ फ्लोरीन गैस चाहिए मुझे। सो एमआर ऑफ फ्लोरीन गैस तो मैं 19 टाइम्स 2 करूंगा तो मुझे एमआर ऑफ फ्लोरीन मिलेगा, विच इज 19 टाइम्स 2 is going to be 38। सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 38 से, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू इज फिक्स फॉर ऑल द गैसेस विच इज 8.31। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टी मैंने निकाला है 305 केल्विन। अगर मैं इस डी को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आंसर समवेयर अराउंड आएगा होल्ड ऑन 100,000 मल्टीप्लाई बाय 38 38 5 zeros, then 8.31 times 305, it's going to be 2534.55। so यहां से मुझे डेंसिटी मिलेगी 38 1 2 3 4 5 divided by answer। so density is going to be 1499.27। okay, ये है मुझे ग्राम पर मीटर क्यूब में। ये मुझे इसको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर है, राइट। सो डी अच्छा ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1499.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर -3 से, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डीएम, राइट। सो मेरे पास डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1499.2 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 10 टू द पावर -3 है तो इट्स गोइंग टू बी 1.4992 ग्राम पर डीएम क्यूब। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब, राइट। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। I hope it makes sense to you. That's an interesting question, guys. Question number 8. The graph shows the boiling points of hydrogen compounds of group 16 elements. हम सब जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज वाटर एक्सवेट्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखवाई है कि फ्रॉम H2S to this number of electrons increases, strength of van der Waals forces increases and therefore boiling point increases। इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखवाई है मैंने आपको। वो कह रहे हैं which statement correctly explains why water does not fit the trend on the other compound। भाई वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than van der Waals forces। Van der Waals forces is also called dispersion forces or London forces or instantaneous dipole induced dipole forces। okay, so let me check the option। there are fewer electrons in the oxygen atom, so there is less shielding। shielding has nothing to do with the boiling point। next, there are strong hydrogen bonds in water, that's true, but not in the other compounds, that's also true। आप जानते हैं कि इन चारों में से इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, which is why B is going to be the right answer। okay, the covalent bonds in water are much stronger, that's true, लेकिन bonding
दिस कोवलेंट बॉन्डिंग हैज नथिंग टू डू विद द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को डील किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। वाटर मॉलिक्यूल आर स्मॉलर एंड हैव स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट? ये वीकर होती हैं। Question number 9. An energy cycle is shown. The energy cycle changes involves X, Y, and Z. The numerical value of energy changes of Y is either minus 80 or plus 890. The numerical value of this Z is minus exothermic or endothermic. What are the three values? Which of the three values are negative? Okay, which of the three values are negative? Okay. सबसे पहली बात, अगर आप नोट करें, मीथेन अंडरगोस कंबशन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब Y इज बेसिकली द कंबशन एंड कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सो इसका मतलब Y इज एक्सोथर्मिक। ओके ओके, नोट करो, ये कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो इसका मतलब इट इज कंबशन ऑफ कार्बन। आप नोट करें, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, वाटर बना रहा है, इसका मतलब इट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब Z इज बेसिकली कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कंबशन जो होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब जेड भी एक्सोथर्मिक है। सो वाई भी एक्सोथर्मिक और जेड भी एक्सोथर्मिक। ओके, यहां तक तो आ गया। अब इधर देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं और वन मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द रिवर्स से ये फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है, ऑफ फॉर्मेशन कैन बी एक्सो और एंडोथर्मिक, राइट? आप नोट करें, अगर ये एरो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये एक्सो होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं इसको, और रिवर्स करना समझ में आता है ना कि ये आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे। तो अगर मैं एरो देखो, एग्जामिनर ने एरो इस तरह से दिया है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, पहली बात। दूसरी बात, ये फॉर्मेशन है। और तीसरी बात ये कि फॉर्मेशन करने के लिए मुझे एरो अपवर्ड करना पड़ेगा, तो मैं अपवर्ड करूंगा तो वो एक्सो के बजाय क्या हो जाएगा, एंडो। तो इसका मतलब अगर मैं एरो अपवर्ड लेके जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सो प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडो। तो एक्स इज एंडो इफ आई रिवर्स द एरो। और वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से लगेगा ना। सो मुझे लगता है कि एक्स सॉरी वाई और जी जो है वो एक्सोथर्मिक है, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जबकि एक्स जो है वो एंडोथर्मिक होगा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जिसके लिए मुझे एरो रिवर्स और फ्लिप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। For a certain endothermic reaction, the activation energy is numerically equal to twice the enthalpy change of reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। Activation energy numerically equal to twice for an endothermic reaction. तो endothermic reaction में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। आई थिंक ये सही है, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। और ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की एनर्जी कम। सो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। अब आप नोट कीजिएगा बहुत केयरफुली और क्रिएटिविटी के साथ देखिएगा। हाँ, मान लीजिए कि ये मैं एक्टिवेशन एनर्जी ले रहा हूँ और ये आपका डेल्टा एच है, तो यहां से लेकर यहां तक आपका डेल्टा एच हो गया। सो जो डेल्टा एच है एक्टिवेशन एनर्जी वो ट्वाइस होनी चाहिए, है ना? ओ माय बैड, होल्ड ऑन।
ट्वाइस, oops 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 oops, hold on, ट्वाइस होनी चाहिए। सो ट्वाइस है या नहीं ये देखते हैं। यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट होगी, यहां से लेकर यहां तक सेकंड, और यहां से लेकर यहां तक थर्ड। सो टेक्निकली दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। इसका मतलब ये भी गलत। राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी, लेकिन बी क्यों ठीक है ये देख लेते हैं। ये आपका डेल्टा एच है, सही है जी। और ये डेल्टा एच जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए, ये 1 टाइम। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ये एक मिनट, सॉरी 2 टाइम होना चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका 1 टाइम हो गया, और ये टेक्निकली आपका 2 टाइम हो गया। सो टेक्निकली ये 2 टाइम है आपका। राइट, so that's the right answer. Oh god. Question number 11. Sodium chromate 6 is manufactured by heating chromite with sodium carbonate in an oxidizing atmosphere. Chromite contain this ion. Chromite का फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपाउंड। मैं सबसे पहले इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता हूँ। क्रोमियम को X लीजिए, सोडियम का चार्ज +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए बिकॉज 2 सोडियम है। ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। होल चार्ज इज इक्वल टू न्यूट्रल बिकॉज मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। तो x इक्वल्स टू -8 + 2 इज -6, राइट हैंड साइड पे जाएगा +6। तो इस कंपाउंड में क्रोमियम इज +6। लेट्स टॉक अबाउट इन दिस कंपाउंड। ओ गॉड, यहां से क्रोमियम को 2x लीजिए। आयरन का चार्ज हैज टू बी 2+। कैसे पता चला? अगर इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है तो ऑब्वियसली इस आयरन के ऊपर 2+। ऑक्सीजन का चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 8 8 -8 + 2 + 6। सो x इक्वल्स टू +3, राइट। ये याद रखिएगा। वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन। ओके, सो टेक्निकली यहां पर क्रोमियम कितना है? +6, और यहां पर क्रोमियम कितना है? +3। इसका मतलब क्रोमियम जो है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है क्रोमियम में। चलें, एक इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो गई हमें। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, होल्ड ऑन, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने इसको पोटैश, आई डोंट नो मैंने इसको सोडियम क्यों लिया है। इट हैज टू बी आयरन, आयरन +2। आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट मैंने +2 लिखना है यहाँ पर बिकॉज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। आई डोंट नो मैंने क्यों आयरन को सोडियम लिया है। एनीवे, कोई इशू नहीं है, आंसर सही है बिल्कुल हमारा। बस आयरन को +2 लेना है। यहाँ पर आयरन डिटरमिन करते हैं। 2x लीजिए, -2 टाइम्स 3 कीजिए, इक्वल्स टू 0 कीजिए। आपको पता है ना ये आयरन है, ये ऑक्सीजन का चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है। सो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू +6, देन x इक्वल्स टू +3। तो आप नोट करें, इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, होल्ड ऑन, जगह बहुत कम है, वर्किंग बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ये Fe2O3 के लिए वर्किंग की है मैंने, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है वो टेक्निकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब आयरन जो है वो, और आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओनली आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, रॉन्ग।
ओनली क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्रोमियम तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी गलत। क्रोमियम, आयरन एंड कार्बन आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, क्योंकि क्रोमियम एंड आयरन आर ओनली एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो have I done some mistake? आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बॉस। होल्ड ऑन। Oh my God, my bad, my bad. Oh my goodness, oh my goodness. This is absolutely incorrect analysis. So मुझसे गलती हुई, आपसे भी हो सकती है, बहुत केयरफुल रहिएगा। मैंने गलत, oh my goodness, oh my goodness. इसकी नहीं, ये कैलकुलेशन करनी है यार। इसकी कैलकुलेशन करनी है, सही है। सो इसमें क्रोमियम को x लीजिए, सोडियम का चार्ज +1 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, क्योंकि 2 सोडियम है। ऑक्सीजन का चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू 0। देन x +2 -8 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू +6। वाह, सही है, ये बिल्कुल सही है। ओह माय गुडनेस, आई मेस्ड अप द एंटायर एनालिसिस। मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है गाइस। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। माय गुडनेस, व्हाट आई हैव डन। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, मैंने किया काम सही था। मैंने इसकी एनालिसिस ये की हुई थी, और इसकी एनालिसिस मैंने यहाँ की हुई थी। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने जो रॉन्ग ऑप्शंस थे उनको जज किया, तो आंसर ये आ गया। बट ये आंसर क्यों ठीक है, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। माय बैड, माय बैड। क्रोमियम को हम 2x लेते हैं। माय गुडनेस। आयरन यहाँ पर 2+ होगा ऑब्वियसली। ऑक्सीजन इज -2 into 4 equals to 0. Then 2x plus 2 minus 8 equals to 0. Then x equals to +6. Then x equals to +3. So that's true. आप नोट करें, यहाँ पर क्रोमियम +3 है और यहाँ पर क्रोमियम +6 है। इसका मतलब क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही है, क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। So chromium is oxidized and iron is also oxidized. That's the true statement. Okay, देखो आयरन +2 से +3 गया, ऑक्सीडाइज हुआ। क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, which is why A is the right answer. My goodness, that's an easy question, but oh my god, it's all right, no problem. Oxygen can be prepared by the reaction of potassium magnate 7 KMnO4, hydrogen peroxide and sulfuric acid. Okay, each H2O2 molecule loses 2 electrons in this reaction. Oh my goodness, that is the most important statement. And also oxygen is prepared. ये बहुत ही important statement है। How many moles of oxygen gas are produced when 1 mole of KMnO4 reacts with an excess of H2O2 in acidic condition? Okay, so let me make the equation first. According to ion electron rule, MnO4 is converted into Mn2 plus. लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो आई अप्लाई 4 वाटर मॉलिक्यूल हियर। राइट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन एटम्स है, आई अप्लाई 8 हाइड्रोजन आयंस हियर। और चार्ज बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 5 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन रीडॉक्स का चैप्टर। ओके, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स के थ्रू बैलेंस करके दे रहे हैं आपको। अब एग्जामिनर ने कहा कि H2O2 जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन गैस
and also it loses 2 electron. How about the hydrogen ions? यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइंस रखूंगा, राइट? सो अब देखिएगा जरा, ये 2 माइनस और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, 0, जबकि यहाँ पर भी चार्ज कितना है, 0, तो चार्ज बैलेंस हो गया दोनों इक्वेशंस में। अब जाहिर सी बात है अगर दोनों इक्वेशंस में चार्ज बैलेंस हो गया तो आई नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर दैट मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ये 16 हाइड्रोजन आइंस 10 हाइड्रोजन आइंस से कैंसिल होंगे, एंड आई विल गेट माय फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन ये आएगी, माय गुडनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। ये है आपके पास 2 MnO4 negative, 6 hydrogen ions left after the cancellation, plus 5 H2O2, arrow 5O2, plus 2 Mn2 plus 8 H2O. ओके, सो आप नोट कीजिए, ये आपके पास 2 मोल है और ये आपके पास 5 मोल है। एग्जामिनर सिंह अगर ये 1 मोल हो तो बताइए ये कितना होगा। तो भाई अगर ये हाफ हो गया यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये 5 भी हाफ होगा। जब ये 5 हाफ होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2.5। सो आई बिलीव 2.5 इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। तो सी बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। I hope it makes sense to you. Oh God. Okay, question number 13. An alcohol ROH reacts reversibly with ethanoic acid to produce an ester. Okay. So what we can do here is कि हम यहाँ equation बनाते हैं। ये RCOH है, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं ROH के साथ। रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे हैं एग्जामिनर। एस्टर बनेगा ऑब्वियसली RCO2R और वाटर बनेगा। एग्जामिनर ने मुझे इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है। सो अल्कोहल के 3 मोल्स हैं, एसिड के 2 मोल्स हैं और वाटर का 1 मोल है इनिशियली, और ये इनिशियली 0 है, ठीक है। तो फाइनल मोल्स यानी इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे? एट इक्विलिब्रियम 1.5 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, 1.5 मोल्स ऑफ एस्टर इज प्रेजेंट। सो अगर एस्टर 1.5 है तो 1:1 के रेशियो की वजह से ये भी कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। ये 1.5 बन गया, ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। भाई यहां से रिएक्टेड मोल्स कितने हैं? ऑब्वियसली रिएक्टेड मोल्स जो है वो 1.5 कंसिडर करेंगे आप, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम जो मोल्स गिवन होते हैं वो रिएक्टेड मोल्स होते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेड मोल्स आ गए। आई नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एसिड एंड अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड मेरे पास 2 था, उसमें से 1.5 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली 0.5 मोल्स बच जाएंगे। मैं यहां पर 0.5 मोल्स लिखूंगा। मोल्स ऑफ अल्कोहल चाहिए मुझे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स हैं, उसमें से 1.5 मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली 1.5 मोल्स बचेंगे, राइट। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Kc इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1.5। आप नोट कर रहे हैं, ये 1.5 से कैंसिल, तो Kc की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, होल्ड ऑन, 2.5 divided by 2.5 divided by 0.5, my goodness, 0.5 is going to be 5. So right answer I believe is going to be D. So right answer is going to be D for question number 13. Okay.
Let's move on to the next question. That is question number 14. 14 तो बहुत easy है, because Weber's process से related है. Graph can be drawn to show the percentage of ammonia at equilibrium when nitrogen and hydrogen are mixed at different temperature and pressure. Which diagram correctly represent these two graphs? या देखिए, at low temperature yield higher होती है. चेक करें लो टेम्परेचर पे यील्ड जो है वो हायर कहां पर है? लो टेम्परेचर पे यील्ड हायर, लो टेम्परेचर पे ये लो टेम्परेचर और ये यील्ड हायर है. सही है. ये लो टेम्परेचर और ये यील्ड कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी का गलत हो गया. ये लो टेम्परेचर है और इसकी यील्ड कम है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया. अभी देख लेते हैं, इसको गलत ना करें, बट ये जो हम एनालिसिस करें वो देख लें. ये लो टेम्परेचर है, यील्ड ज्यादा है, तो पॉसिबल नहीं. हाँ, लो टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा है, हाँ सही है, ये भी सही है. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये सही है बिल्कुल कि ये लो टेम्परेचर और यील्ड ज्यादा है. ये टेक्निकली गलत है क्योंकि लो टेम्परेचर पे यील्ड कम होगी. सही है. तो ये मैंने लो टेम्परेचर देखा, लो टेम्परेचर पे यील्ड हमेशा हायर होती है, तो ये लो टेम्परेचर और ये यील्ड हायर. ये लो टेम्परेचर लेकिन यील्ड लोअर, लो टेम्परेचर यील्ड लोअर, लो टेम्परेचर यील्ड लोअर. तो इसका मतलब ए सी और बी तो रॉन्ग हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. एक और भी चेक करना है. एट हाई प्रेशर यील्ड हायर होती है अमोनिया की, यही आपने पढ़ा है. अब हाई प्रेशर पे देख लेते हैं. प्रेशर ये है आपका हाई, ठीक है. इस हाई प्रेशर के ऊपर यील्ड कम है अमोनिया की. ठीक है. इस हाई प्रेशर के ऊपर यील्ड कम है अमोनिया की. इस हाई प्रेशर के ऊपर यील्ड कम है अमोनिया की, लेकिन ये प्रेशर हाई है और ये यील्ड भी हाई है. तो इसका मतलब टेम्परेचर पे भी हाई यील्ड है, प्रेशर पे भी हाई यील्ड है. इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑब्वियसली ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत. यानी मैंने सही किया था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मैंने इस तरह से किया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. The Boltzmann distribution for the halogenation of an alkene at particular temperature in the absence of a catalyst is shown. In the absence of a catalyst, which row correctly describe the effect of adding nickel catalyst? जब आप catalyst यूज करते हैं, so shape will remain same. और दूसरा, proportion of molecule increases. That increases the rate of reaction. और चौथा, अगर आपको याद हो, जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो यहां पर चला जाता है ग्राफ. ये है ई ए कैटलाइज्ड. दैट इंडिकेट्स कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास एरिया है, इसमें देखें प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया पहले के मुकाबले में. पहले सिर्फ इतना प्रोपोर्शन था, लेकिन अब ये सारा हो गया, तो प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया. राइट. तो बोल्ट्जमान शेप, डिस्ट्रीब्यूशन शेप कर्व चेंजेस नहीं होती, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, आई बिलीव. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. Question number 16. Element Y, Z are both in period 3 of the periodic table. Okay. When the chloride of element Y is dissolved in water, it reacts and solution of pH 2 is produced.
पीरियड 3 के कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके क्लोराइड्स बनते हैं तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं? SiCl4 के साथ ऐसा होता है, AlCl3 में भी ऐसा ही होता है, PCl5 में भी ऐसा होता है, ऐसा ही है, PCl3 में भी ऐसा ही होता है। सो ये वो क्लोराइड हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स के जो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं जिसकी pH 2 gives an acidic solution of pH 2। फिर आपसे कह रहे हैं when the chloride of element Z is added to water it dissolves and a solution of pH is produced। कौन कौन से क्लोराइड हैं पीरियड 3 के जिनको वाटर में ऐड करें तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं? सो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन देता है एंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी एसिडिक सोल्यूशन देता है 6.2 से 6.5 की पीएच का। ठीक है, सो एलिमेंट Z इज सोडियम, एलिमेंट Z इज सोडियम, एलिमेंट Z इज सोडियम, ये तो ठीक है। एलिमेंट Z एल्यूमिना में ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, बोथ क्लोराइड हाइड्रोलाइज इन वाटर, नहीं। NaCl जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, NaCl इज सॉल्युबल, हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसलिए ये जो बोथ की टर्म है ये गलत है। ओनली NaCl इज सॉल्युबल, बाकी जो है एलिमेंट Y वाला वो हाइड्रोलाइज होगा। ओके, एलिमेंट Y इज मैग्नीशियम। element Y is magnesium is also wrong because magnesium chloride cannot hydrolyze. It is soluble in water. अब हाइड्रोलाइज जो है वो फॉस्फोरस हो सकता है और हाइड्रोलाइज जो है वो सिलिकॉन का क्लोराइड हो सकता है ना भाई। ये फॉस्फोरस का हो जाएगा या सिलिकॉन का क्लोराइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अब सी तो हम ऑलरेडी गलत कर चुके, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि उसी पे दो चेक्स लगे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। Aluminum, silicon, and phosphorus are element in period 3 of the periodic table. Each element forms an oxide. Okay, ये बनाएगा Al2O3, ये बनाएगा SiO2। इसके दो ऑक्साइड होते हैं, हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ले लेते हैं P4O10। Each element forms an oxide. Which row is correct? Aluminum oxide जॉइंट आयनिक होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर के साथ विग्रस रिएक्शन नहीं होता बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये बेसिक भी नहीं होता। ठीक है भाई, ये बेसिक नहीं होता, सही, ये एम्फोटेरिक होता है। SiO2 इज नॉट एम्फोटेरिक, इट इज एसिडिक। ये जॉइंट आयनिक नहीं होता, जॉइंट मॉलिक्यूलर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है बिकॉज इट इज अ सैंड, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। P4 P4O10 इज एसिडिक, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, विग्रस रिएक्शन विद वाटर होता है, तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 18। Which statement is correct? Atomic radius of silicon is larger than that of aluminum. By across the period, atomic radius
decreases. Boiling point of chlorine is higher than that of silicon. यार ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और वो इसलिए क्योंकि सिलिकॉन हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर. सो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा. क्लोरीन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. हायर नहीं, लोअर होगा यहाँ पर. ये भी गलत, ये भी गलत. नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फास्फोरस. ओ माय गुडनेस, फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सल्फर से, बिकॉज फास्फोरस को अगर मैं ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो इसका मतलब S2P3 होगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सल्फर की S2P4 है. सो ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है. इसका मतलब फास्फोरस मोर स्टेबल, तो इसका मतलब उस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. ये ग्रेटर नहीं होगा, ये लोअर होगा. The right answer is going to be D, obviously. Let's talk about D. The electrical conductivity of magnesium is greater than that of sodium. That's true, because magnesium के valence shell में 2 electrons होते हैं, sodium के valence shell में 1 electron होता है. Question number 19. All solubility data in this question is given at the same temperature. Okay, the solubility होती है वो temperature से vary करती है. Temperature increase करोगे solubility increase होगी, temperature कम करोगे solubility कम होगी. And since we need a fair comparison, which is why examiner ने यहाँ पर temperature same लिया है. तो इसका मतलब solubility has nothing to do with the temperature now. आगे चलते हैं. The table gives some data for the compounds of calcium and for the compound of X as unidentified element in group 2. कैल्शियम की थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट जो है वो 840 है, और जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो कार्बोनेट है वो थर्मली स्टेबल है. एंड दैट इंडिकेट्स कि इट कुड बी बेरियम कार्बोनेट, क्योंकि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. राइट, एंड प्रूव्ड. Solubility of sulfates. So down the group solubility of sulfates decreases. और आप जानते हैं कि बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. राइट, तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, तो वो ये गिवन है. ठीक. solubility of hydroxide down the group एक मिनट पहले ओ मैंने हाइड्रोक्साइड कर दिया, माय बैड, होल्ड ऑन. डाउन द ग्रुप solubility of group 2 hydroxides increases and that indicates कि barium hydroxide is soluble. सो सॉलिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 है तो वैल्यू से ज्यादा हो. तो 10 टू द पावर -3 की टर्म में दी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है. ठीक है, और सल्फेट की सॉलिबिलिटी कम है, तो ये भी कम है. सल्फेट की सॉलिबिलिटी ये भी कम है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी.
ठीक है जनाब। What is the total volume of gas produced? Examiner is looking for the total volume of gas measured at room condition when 0.010 mole of anhydrous magnesium nitrate is completely decomposed by heating. So first of all, let's balance the equation. अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लूं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल है एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये टोटल गैसेस 5 मोल्स हैं। एग्जामिनर इज सेइंग कि अगर मेरे पास 0.010 मोल हो तो बताइए ये कितना होगा। सो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.010 डिवाइड कर दूंगा 2 से। Oh my goodness, 5 multiplied by 0.010 divided by 2. So it's going to be 0.025 और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं 24,000 cm³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैसेस आ जाएगा into 24,000 cm³ is 600. So right answer obviously is going to be C. Question number 21. A solid sodium halide is reacted with concentrated sulfuric acid. The lowest oxidation state of sulfur in the product is +4. यार सल्फर की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कब होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाए। इसका मतलब ये हैलाइड इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सोडियम ब्रोमाइड है, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम, होल्ड ऑन, सोडियम ब्रोमाइड है, इसको आप रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड में। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में और HBr में। सही है। Halogen Y is less volatile than halogen X. अगर लेस वोलेटाइल है तो इसका मतलब वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। और चलें अब फेयर कंपैरिजन है हमारे पास। हैलोजन जो है वो हमारे पास लेस वोलेटाइल है, यानी वीकर वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो आप सब जानते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो आयोडीन में होंगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं। उससे कम ब्रोमीन में होंगी, उससे कम, अच्छा, और सबसे ज्यादा आयोडीन में होगी, सॉरी एस्टेटीन में होगी। यार एस्टेटीन भी दिया हुआ एग्जामिनर ने। सबसे ज्यादा एस्टेटीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम क्लोरीन। तो इसका मतलब सबसे कम क्लोरीन यानी सबसे लेस वोलेटाइल क्लोरीन होगा। तो इसका मतलब क्लोरीन वुड बी द राइट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। ये आ गया। मैं राइट और रॉन्ग? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है। चलें, एक चीज तो क्लियर है कि शुडंट बी आयोड सोडियम आयोडाइड, बिकॉज सोडियम आयोडाइड जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो H2S बनाता है, और इस H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन से स्टेट -2, जबकि वो कह रहे हैं +4 है। सही है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब सोडियम आयोडाइड तो नहीं हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड में से कोई सोडियम ब्रोमाइड पॉसिबल है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास तो इन दोनों को अब मैंने कंपेयर करना है। अब इन दोनों में से लेस वोलेटाइल कौन सा होगा? आई थिंक आयोडीन होगा, बिकॉज आयोडीन इज सॉलिड एट आरटीपी, बिकॉज आयोडीन इज सॉलिड एट आरटीपी। या दैट्स द राइट आंसर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वैन डर वाल्स फोर्सेस हैज नथिंग टू डू विद दिस होल सिनेरियो। लेट मी चेक वन मोर टाइम। अच्छा जी, मेरे पास सोडियम क्लोराइड सोडियम आयोडाइड तो नहीं हो सकता, मैंने बता दिया वो H2S फॉर्म करता है सक्सेसिव रिडक्शंस के थ्रू। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रोमीन करता है, आई मीन सोडियम ब्रोमाइड करता है, ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है आपको, तो ये तो ठीक है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा लेस वोलेटाइल कौन सा होगा? आयोडीन होगा, बिकॉज सॉलिड है। एस्टाटीन भी सॉलिड है, ये भी लेस वोलेटाइल होगा, बट ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ लिख दीजिए कि आयोडीन एंड एस्टाटीन आर सॉलिड्स। Compound Q dissolves in water. Q does not react with dilute sulfuric acid. Okay. Q dissolves in water. Okay. यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q forms precipitate when aqueous silver nitrate is added. The precipitate is partially soluble in aqueous ammonia. So ये जो टर्म है ना, partially soluble in aqueous ammonia, इसका मतलब it has to be bromide ions. That means B और D incorrect, क्योंकि इन दोनों में iodide ions हैं। So इसका मतलब competition exists between A and C। अब A के लिए देखिएगा, अगर मैं इस बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दूं, इट विल टर्न टू बेरियम सल्फेट NaHCl, एंड ऑब्वियसली इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और ये इनसॉल्युबल है, राइट। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड लूं, यार माय बैड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय माइंड। ये ब्रोमाइड है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड लूं और उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊं, सो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट में और HBr। इसका कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज ये सॉल्युबल होता है।
सो इसका मतलब वो कह रहे हैं Q डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल है, राइट? क्योंकि इसने कहा कंपाउंड Q इज डिसॉल्व इन वाटर, ये तो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इसका मतलब इट शुडंट बी एन आंसर नाउ। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली सी, बिकॉज ये सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये बहुत आसान था, इसको आप इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि यार क्योंकि पार्शली सॉल्युबल इन वाटर है प्रेसिपिटेट्स, तो पार्शली सॉल्युबल सिर्फ ब्रोमाइड होता है, इसका मतलब बी गलत, डी गलत। अब जाहिर सी बात है बेरियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड डिसॉल्व होगा वाटर में? सो टेक्निकली आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन करवा के देखना है कि कौन सा प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल है, तो जो सॉल्युबल होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है? That's how we can determine the answer in this scenario. काफी ट्रिकी है हो रहा है, but I don't know. चलें next 23. Nitrogen dioxide is a gas that contributes to air pollution. It is produced in the internal combustion engine. Which statement is correct? Nitrogen dioxide acts as a catalyst. That's true. In the atmosphere. That's true. Oxidation of sulfur dioxide to sulfur dioxide. That's also true. Which means A is going to be the right answer because we have done this whole scenario in the class, right? बाकी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर। नहीं भाई, गलत है। कैटालाइटिक कन्वर्टर में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, गलत हो गया। PAN forms when nitrogen dioxide reacts with the gases formed by the complete combustion of fuel. Not at all. PAN उस वक्त फॉर्म होता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्शन करते हैं। सो ये गलत हो गया। Under high pressure in an internal, under high pressure in an internal nitrogen dioxide forms from impurities in the fuel। नहीं जी, impurities की वजह से नहीं, under high temperature not pressure, पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्स फ्रॉम impurities in the fuel, that's in superly incorrect because नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। ओके, so I believe A is going to be the right answer। My goodness। Next, what is the bond angle in the ammonia mine? Oh my goodness, we have done that in class। ये अमोनिया माइन है, नाइट्रोजन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, सो टोटल इज गोइंग टू बी 4। 4 लाइंस ड्रॉ करो। फर्स्ट वाली लाइन s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, रिमेनिंग लाइंस p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो व्हेनेवर वी हैव 4 single bond and a 0 lone pair with sp3 hybridization, angle is going to be 109.5 degree, and I believe on the basis of that C is going to be the right answer। Whew. 23, 24, okay, 25. The structural isomerism and stereoisomerism should be taken into account when answering this question. The structure of 3-methyl cyclobutane is shown. A mixture containing all stereoisomers of this compound is treated with HBr. This produces a mixture of isomeric this। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब आप इस कंपाउंड का HBr से रिएक्शन कराओगे तो मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड बनेंगे। वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स डज दिस कंपाउंड हैव। तो भाई इस कंपाउंड के कितने स्टेरियो आइसोमर्स हैं, और स्टेरियो आइसोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो बेटा यहां से एक बात तो क्लियर आ गई है, इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ द साइक्लिक रिंग। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था कि साइक्लिक रिंग्स जब भी होंगी उसमें सिस तो होगा, ट्रांस नहीं होगा। तो जाहिर बात है जब सिस है ट्रांस नहीं है तो स्टेरियो आइसोमर्स तो नहीं बने हुए एक दूसरे के, राइट? लेकिन आप नोट करें ये जो कंपाउंड है इसमें कारिल कार्बन है, कारिल कार्बन है, 2 टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे आपको, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लेवो रोटेटरी होगा। तो इसका मतलब 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन से आपको सिर्फ 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, और वो भी दोनों स्टेरियो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं।
बिकॉज ऑफ द कायरल कार्बन। ठीक, अब मसला एक और है। मसला क्या है? मसला ये है कि जनाब अगर मैं इस कंपाउंड को HBr से रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर क्या होगा? चलें बनाते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। ये कंपाउंड है, आप इसको HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 एज इट इज रहे। जी, पॉसिबिलिटी देखिए, ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब HBr ऐड करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक H आपने यहाँ ऐड किया और Br यहाँ ऐड किया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ H ऐड किया और यहाँ Br ऐड किया आपने, राइट। अब आप नोट कीजिए कि इस कंपाउंड में ये वाली जो कार्बन है ये भी कायरल है, और ये वाली जो कार्बन है ये भी कायरल है। तो यहां से अगर मैं 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे यहां से 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, राइट। जाहिर सी बात है ये कायरल कार्बन एटम नहीं है और ये भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि दोनों CH2 से अटैच हैं, राइट। सो यहां पर कोई कायरल कार्बन एटम नहीं होगी, ये बताना भी जरूरी है। नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब भी साइक्लिक रिंग होती है तो सिस भी एग्जिस्ट करता है, ट्रांस भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये साइक्लिक रिंग है और सिंगल बॉन्डेड है तो इसमें सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। यू कैन चेक माई नोट्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हो जाएंगे तो सिस हो जाएगा, और अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा, राइट। सो एक दूसरे के सेम साइड पे कैसे हो सकते हैं? सेम साइड पे उस वक्त होंगे जब दोनों के दोनों पिरामिड हों और दोनों आउट ऑफ द प्लेन हों। तो सेम साइड पे हो जाएंगे दोनों। ये हो गया आपका सिस हो गया ये, सही है। जब दोनों आउट ऑफ द प्लेन होंगे तो सेम साइड पे होंगे, सिस हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज इस तरह से हो कि एक आउट ऑफ द प्लेन हो और एक बिहाइंड द प्लेन हो, सही है। से ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये बिहाइंड द प्लेन है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे ऑब्वियसली, और ये ट्रांस हो जाएगा। तो देखो टू आपने यहां निकाले और टू ज्योमेट्रिकल यहां आ गए आपके पास। सो अगर आप टोटल करें तो 4 ऑप्टिकल यहां बने और 2 ज्योमेट्रिकल यहां बने, तो टोटल आपके पास इस रिएक्शन करने के बाद 6 आइसोमर्स बने। तो 6 यहां है, बस 6 यही है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी। बट दैट इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट, वेरी वेरी ट्रिकी पार्ट। बस इतना याद रखना, अगर ये वैसे बनाने के लिए तो नहीं आएगा, आपसे बनाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपको ये पता हो कि whenever you have cyclic ring with single bonded carbon atom, उसमें से ट्रांस एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको ये करवाया था ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि ये है, तो अगर ये क्लोरीन यहाँ पर है और ये क्लोरीन यहाँ पर है तो ये ट्रांस हो गया, और अगर ये दोनों सेम साइड पे हो जाएं, यानी ये दोनों अब यहाँ हो जाएं, तो ये सिस हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी यही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। Anyway, let's move on to the next part of the question. The diagram shows the structure of X. Okay, which row is correct? Number of sigma bonds in X. भैया ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, पाई नहीं है। कहीं आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लें। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एक्स। भाई ये काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये H, ये डबल बॉन्ड, ये भी H, ये भी H,
चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अच्छा, इसमें ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से sp हाइब्रिडाइज। तो इसमें sp एंड sp2 है, so right answer obviously is going to be C in this scenario. Okay, question number 27. The diagram shows the skeletal formula of citric acid. Okay, what is the molecular formula of citric acid? My goodness, भाई कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कहाँ लिखा हुआ है ये चेक कर लीजिए, C7H8O7, C6H8O7, A is going to be the right option. Question number 28. Which reaction occurs when ethane and chlorine are mixed in a diffuse sunlight? Obviously, ethane always undergoes free radical substitution reaction. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, अब जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज HCl गैस इज गिवन ऑफ। हाइड्रोजन क्लोराइड इज गिवन ऑफ, दैट्स करेक्ट। नो गैस वाज गिवन ऑफ, नहीं जी, HCl इज गिवन ऑफ। सो सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन नंबर 29. A molecule of geraniol is shown. What is formed when geraniol react with excess of cold dilute acidified KMnO4? भाई ये जो कोल्ड KMnO4 है ना, ये एल्कीन से रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको यहां से जरा कॉपी करूं और फिर मैं इसमें चेंजेस करके देखता हूं, ठीक है। कुछ सर्टेन मल्टीपल चेंजेस होंगी, उसको देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आंसर निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। होल्ड ऑन, टेंशन नहीं है, यहाँ रखिए यार, ठीक है। अब पहली तो बात ये कि मान लो कि ये बॉन्ड यहां से खत्म, ये बॉन्ड भी यहां से खत्म। तो जब बॉन्ड खत्म हो जाता है तो आपको पता है ना, OH ऐड होते हैं। तो एक OH आपने यहां ऐड किया और दूसरा OH आपने यहां ऐड किया, ठीक। अच्छा, एक OH आपने यहां ऐड किया और दूसरा OH आपने यहां ऐड किया। तो आप चेक करो कि ये प्रोडक्ट कहीं एग्जिस्ट कर रही है। देखो ये OH ये रहा, ये वाला OH मैंने नीचे, इन्होंने नीचे बनाया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये OH ये रहा और ये वाला OH ये है, और ये पूरा पूरा ग्रुप एज इट इज कॉपी किया है। सो ए माइट बी द राइट आंसर, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। ये भी गलत, क्योंकि ये कीटोन नहीं आ सकता। सही है, कीटोन्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि एल्कीन से जब रिएक्शन होता है तो कीटोन नहीं बनता। डी भी गलत, क्योंकि एल्कीन रिएक्शन नहीं कर रहा है इसमें, विच इज रॉन्ग। एल्कीन का तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बी और डी गलत हो गए, बहुत ही सिंपल वैलिड रीजन के ऊपर। अच्छा, ये सी क्यों गलत है? सी उस वक्त बनता है, these fragments are formed when concentrated KMnO4 is used. सही है, इसका मतलब बेटा ये तो गलत हो गया, चलें इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। सही है, तो ये तो हमें उस वक्त मिलेंगे कंपोनेंट जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज होगा, तो ये भी गलत। राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए।
ठीक है, वैसे एक चीज बता दूं आपको, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट होना चाहिए था, एग्जामिनर नहीं कर रहे इसलिए कोई इशू नहीं। सही है। चलो 29, लेट्स मूव ऑन टू 30। माय गुडनेस, Q इज आइदर प्राइमरी और टर्शियरी हैलोजेनोअल्कीन, या तो ये टर्शियल कार्बाइड है या प्राइमरी। ओके, Q अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है जनाब। The first step in the mechanism of this reaction involves two species reacting together. हाँ या ना, the first step in this mechanism, two species reacting together. Whenever two species reacting together, इसका मतलब ये slow step होगा, और two species हमेशा slow step में इन्वॉल्व होती हैं, इसका मतलब वो SN2 होगा। और तुम जानते हो कि SN2 कभी भी टर्शी भी नहीं होता, बिकॉज टर्शी ऑलवेज अंडरगोज SN1। इसका मतलब इट हैज टू बी प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन। सही है, ये जजमेंट थी मेरी कि प्राइमरी हैलोजन अल्केन गैस है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू स्पीशीज व्हेनेवर रिएक्टिंग टुगेदर, इसका मतलब इट हैज टू बी एन SN2 रिएक्शन, बिकॉज वो दोनों स्पीशीज स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। और SN2 ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी हैलोजन अल्केन में SN1 होता है, और SN1 जो होता है उसमें टू स्टेप रिएक्शन होता है। और टू स्टेप में जो स्टेप 1 होता है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। So this is primary. Behavior of hydroxide ion nucleophile. So right answer is going to be B. अच्छा जी, मुझे हाइड्रोक्साइड आयन पता चले न्यूक्लियोफाइल कैसे, तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, इसमें से ऑब्वियसली जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे वो आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, और न्यूक्लियोफाइल को हम जनरली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलें 31, टू ब्रोमोप्रोपेन। भाई टू ब्रोमोप्रोपेन ये है आपके पास CH3CHBr is converted into 1,1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, यानी वो इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वॉल्विंग टू रिएक्शंस, ठीक है। ये अल्काइलाइड है, एक कंपाउंड बनेगा, उसके बाद 1,2 डाइब्रोमो बनेगा। यार स्टेप 1 में सबसे पहला काम एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा, और एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इथेनॉलिक NaOH अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। तो इसका मतलब एक्वस NaOH से तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये गलत। तो जब एलिमिनेशन होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा प्रोपीन, तो कंपाउंड X इज बेसिकली योर प्रोपीन। और जब तुम इस प्रोपीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, एक मिनट होल्ड करें, 1,2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें ऑब्वियसली फिर ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, राइट। सो इसका मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। देखो मुझे कैसे पता चला कि यार ये एल्कीन होना चाहिए या एलिमिनेशन होना चाहिए, ये सवाल हर बच्चे के जहन में आता है। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम या एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हैलोजेंस अटैच हों, इसका मतलब इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड, तभी तो ये बनेगा। जब इन लाहौल जब इन दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन एटम के साथ ना ब्रोमीन अटैच होगा। तो अगर ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच है, इसका मतलब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। और डबल बॉन्ड उसी वक्त आएगा बिटवीन द कार्बन एटम जब अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा, और एलिमिनेशन हमेशा इस रिएजेंट के थ्रू होता है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट। बट दिस क्वेश्चन इज रियली रियली गुड, आई लाइक इट, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ओह,
compound X is a single pure optical isomers. Compound X is heated with an excess of concentrated H2SO4. Only one organic product is formed. यार ये बड़ा important है. Only one organic product is formed. और दूसरा important ये कि dehydration हो रही है क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल्स हैं. ओके, डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी तमाम में, कोई शॉर्टकट तो है नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. देखो, जो मैंने आपको सिखाया मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा हूं. OH हटा दीजिए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए. राइट. शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है. इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है. इसका मतलब इससे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया हमने और एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया. तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इस ऑप्शन से मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जबकि उसने कहा है 1 प्रोडक्ट. सही. इससे रिलेटेड बात करते हैं. OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां से OH हटाइए और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कीजिए. राइट. Shifting of bond, removal of hydrogen takes place from this carbon atom and this carbon atom. तो इसका मतलब ये हुआ माय गुडनेस, मुझे तो ये जगह कम पड़ रही है तो मैं वहां कैसे लिखता. गॉड. तो एक डबल बॉन्ड जो है वो हम यहां बना सकते हैं और एक डबल बॉन्ड जो है वो हम यहां बना सकते हैं. अगेन ये भी 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है, इसका मतलब ये भी गलत. सही है. माय गुडनेस, कैसे करेंगे अब हम. OH हटाइए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कीजिए. ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया. ठीक है. अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है. क्योंकि 3 एडजेसेंट कार्बन एटम है, इसका मतलब 3 डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगी यहां से. माय गुडनेस, 3 डिफरेंट एल्कीन्स. तो जगह ही नहीं है. ओह, एक मिनट. ये मैंने यहां से बनाया है. जब मैं यहां से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा. जब मैं यहां से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा. जब मैं शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से करूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा. होल्ड ऑन. as it is, as it is, as it is, as it is. ये आ गया. So ये भी गलत क्योंकि ये 3 अल्कीन्स दे रहा है. उफ, ये 1 मिनट में कैसे होगा भाई. सो जब A गलत, B गलत, C गलत, तो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी D. बट D क्यों ठीक है ये देख लीजिए. रिमूव OH from CH2 so that CH2 becomes positively charged. और ये बॉन्ड है. Shifting of bond, removal of hydrogen takes place from this carbon atom only, which means from this carbon atom you will get only one type of alkene, and that is going to be and that is going to be
डबल बॉन्ड हियर एंड CH2 और ये ग्रुप. ओके, सो वन प्रोडक्ट है ये सर. और एग्जामिनर हमसे ये कह रहे थे कि वन प्रोडक्ट बताओ किस में होगी. ये कह रहे हैं ना वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. इसका मतलब D is going to be the right answer for this question. Okay, a lot of working, but somehow हमें पता होना चाहिए D is the right answer for this question. Question number 33. Which reagent could be used to form 2-bromopropane from butane 1-ol? अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये 1-ओल है और ये याद रखिएगा कि ये 2-ब्रोमो यानी सेकंड फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन लग गई. सो मैं कुछ इस तरह से करूंगा. यार ये भी जगह ही नहीं है मेरे पास. अब व्हाट कैन आई डू. चलो खैर कोशिश करते हैं. ये है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, दैट इज ब्यूटेन 1-ol. अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा ब्यूटीन. और जाहिर बात है यू नीड 2-ब्रोमोब्यूटेन. तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. अगर आप इसको रिएक्शन करवा देंगे, माय गुडनेस, आई डोंट हैव इनफ स्पेस टू एक्सप्रेस माय एक्सप्लेनेशन. मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से. तो ऑब्वियसली दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. मार्कोनी कोफ रूल फॉलो करेंगे. जब मार्कोनी कोफ रूल फॉलो करेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन को फॉलो करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आपका ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा और ये CH2 हाइड्रोजन हासिल करने के बाद CH3 हो जाएगा. तो दैट्स योर 2-ब्रोमो ब्यूटेन. दैट्स हाउ वी कैन फॉर्म दिस होल सिनेरियो. सो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे. ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ. और हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करेंगे तो ये लिखा हुआ, ये ब्रोमीन गलत, पोटेशियम ब्रोमाइड गलत, अल्ट्रावायलेट लाइट तो एल्केन में यूज होता है तो ये भी गलत. तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी D. ठीक है, ये बहुत सोचना पड़ेगा आपको. इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस. यू हैव टू थिंक अ लॉट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट सच सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक क्वेश्चंस. ये आसान नहीं होते बेटे, बहुत डिफिकल्ट होते हैं ये. इसके लिए आपके जहन में पूरी एनालिसिस होनी चाहिए. ओह माय गुडनेस, ऑर्गेनिक टफ. ओह माय गॉड, अगेन आइसोमेरिक कीटोन. ओह माय गुडनेस. ओह ओके. X is a non-cyclic ketone with a single carbonyl group. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल कार्बोनाइल ग्रुप है. नो अदर फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल. कीटोन X और ये नॉन साइक्लिक है. इसका मतलब स्ट्रेट चेन होगा कोई ना कोई. ठीक है. When ketone X is treated with sodium borohydride, the organic product has an MR of 2.3256% greater than the MR of ketone X. Oh my goodness. कीटोन X gives a yellow precipitate with alkaline acetosidine. तो इस टेस्ट से मुझे एक चीज पता चल गई कि जो भी आप कीटोन के आइसोमर्स बनाओगे, मेक श्योर करोगे कि उस आइसोमर में ये ग्रुप अवेलेबल हो, क्योंकि जब ये ग्रुप अवेलेबल होता है तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है. ना द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस. और एमआर ऑफ कीटोन X भी कैलकुलेट करना. हम एक काम करते हैं, हम करते ये हैं कि हम रेशियो अप्लाई करते हैं. हमारे पास एक कीटोन है X और उस कीटोन के अंदर तकरीबन इतना अमाउंट ऐड हो जाता है. सही है. तो ये हो जाएगा X+2. अगर X 100% है और उसमें इतना अमाउंट आपने ऐड कर दिया, तो 100 में जब ये अमाउंट ऐड करोगे
100 में जब ये अमाउंट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 102.3256। सो यहां से तुम x की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आ जाएगी 86, एंड 86 इज बेसिकली द MR ऑफ कीटोन। कीटोन कितने कार्बन एटम का होगा देख। तो सबसे पहला कीटोन हमारे पास है प्रोपेनॉन, ऑब्वियसली इसका MR कितना है हमारे पास 30 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 16, इसका MR है जनाब 58। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। अच्छा अगर 86 है और मैं उसमें से 58 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा 28। सो 28। अच्छा फिर मैं दूसरा ले लेता हूं भाई, CH3 CO CH2 CH3। अब इसका MR निकालते हैं। 30 प्लस 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 16 8 प्लस 14 इस 72 है। तो ये भी गलत। माय गुडनेस मेरे पास तो जगह ही नहीं है। एक और देखिए CH3 CO CH2 CH2 and CH3। होल्ड ऑन। 30 प्लस 28 टाइम्स 2। ओ 38 प्लस माय गुडनेस 15 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 14 प्लस प्लस 15। Oh my goodness, that's 86. And that is the formula of that ketone X. अब इससे रिलेटेड मुझे आइसोमर्स बनाने, और इतने आइसोमर्स बनाने कि जिसमें ये येलो प्रेसिपिटेट्स भी आ जाएं। एक तो ये मैंने बना दिया क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है। दूसरा बनाते हैं। माय गुडनेस, दूसरा ये बन सकता है CH3 CH2 CO CH2 CH3। लेकिन आप नोट करें इसमें नो आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि CH3CO ग्रुप एक साथ नहीं है। अच्छा अगर मैं इस तरह से बना दूं इसको CH3CO देन CH, ये CH3 और इस पे भी CH3 आ जाए, चेक करो 1 2 3 4 5 सही है। 5 कार्बन एटम्स यहाँ भी हैं, 5 कार्बन एटम्स यहाँ भी हैं। यहाँ पर भी आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आइडोफॉर्म का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि CH3CO ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो टेक्निकली आइसोमर्स तो मेरे पास 3 है, लेकिन आइडोफॉर्म का टेस्ट ये देगा और ये देगा, सिर्फ 2 देंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। दैट्स वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी। अच्छा बच्चे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई व्हाई आर वी एडिंग दिस टू। जाहिर सी बात है आप रिडक्शन करवा रहे हो ना, तो जब रिडक्शन होगी तो कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, राइट। जब कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। तो तुम यहां पर लिख लो कि ये 2 जो है वो एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन है, बिकॉज कीटोन is reacting with NaBH4, converting it into 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल। ओ माय गुडनेस, आप ये भी सोच सकते हो, ठीक है। That's tricky. Anyway, question number 35. Compound Y changes the color of acidified potassium dichromate 6 from orange to green
ओके, हैज नो इफेक्ट ऑन फेलिंग रिएजेंट। बेटा देखिएगा जरा, वो कह रहे हैं हैज नो इफेक्ट, सो यहां पर एल्डिहाइड है, इट हैज एन इफेक्ट, तो ये गलत हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट। सो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट ये भी करेगा, ये भी देगा। इसके ऊपर फेलिंग का भी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। सही है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन। जबकि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखो यहां पर 2,4 डीएनपीएच का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कीटोन अवेलेबल है। सही है, इसमें फेलिंग रिएजेंट का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कीटोन में टेस्ट नहीं होता। सही है, और क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल्सो वाया K2Cr2O7, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। और बेटा इसमें ये डी गलत है, क्योंकि ना इसमें फेलिंग टेस्ट होगा, ना 2,4 डीएनपीएच का टेस्ट है। सही है, ये इसलिए गलत है क्योंकि नो 2,4 डीएनपीएच टेस्ट। 36, the product of the reaction between propanol and hydrogen cyanide is hydrolyzed under acidic condition। तो सबसे पहला काम कि मैं प्रोपेनॉल लेता हूं, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको, और मैं इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर यू विल गेट साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन बनाने का तरीका क्या है कि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है उसके साथ उसको OH में कन्वर्ट करो, उसी के साथ साइनाइड लगाओ, और ये CH3 विल रिमेन एज इट इज। ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन, ये ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो साइनोहाइड्रिन तुमने बनाया, यानी जो प्रोडक्ट तुमने बनाई है, उस प्रोडक्ट को तुम ट्रीट कर दो, यानी हाइड्रोलाइज कर दो अंडर एसिडिक कंडीशन। तो अगर तुम एसिड हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये COH भी एज इट इज रहेगा, ये CH3 भी एज इट इज रहेगा। जो CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा COH में, क्योंकि जब भी एसिड हाइड्रोलाइज किया जाता है नाइट्राइल COH में कन्वर्ट हो जाता है। सो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब इस प्रोडक्ट को तुम बेटा तमीज और शऊर के साथ कैसे लिख सकते हो? इस तरह से लिख सकते हो, CH3 टेकन टू COH एंड देन COH। अब आप देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, CH3 टेकन टू ये लिखा हुआ, फिर कार्बन के साथ ब्रैकेट में OH ये लिखा हुआ, और फिर COH ये लिखा हुआ। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी 37। P is a carboxylic acid with molecular formula C5H10O2। Carboxylic acid P react with excess of lithium aluminum hydride to form compound Q. Which pair of molecules could be carboxylic acid P and compound Q? Oh my goodness. Oh, 3 4 5 4 5। कार्बोक्सिलिक एसिड पी तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि C5H10O2 है, तो ये C5H10O2 सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सही है। जब हम इसको एक्सेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो ऑब्वियसली इट अंडरगोज रिडक्शन। तो भाई अगर 1 की रिडक्शन होगी तो ये बनेगा।
और ये COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो आप नोट करें एग्जामिनर यहां से CH2 मिस कर गया है ना। देखो ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, तो ये CH2OH आना चाहिए था, एग्जामिनर ने सिर्फ OH लिखा, CH2 मिस कर दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। ओके और याद रखिएगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, क्योंकि मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होगी। जबकि एग्जामिनर यहां पर क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये भी गलत, ये भी गलत। जब टू वन गलत, टू गलत, तो बचेगा क्या फिर? चलें ये देखते हैं। अगर मैं इसकी रिडक्शन करूंगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, सही बात है। ये नोट करें, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज, दैट्स राइट। और ये COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, दैट्स ऑल्सो राइट। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। So only 3 is correct and therefore D is going to be the right answer. Question 38. Compound X is treated with an excess of dilute aqueous potassium hydroxide. Okay. What is the structure of the organic product? ये मेरे पास जगह कम है लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, एक मिनट रुकें, मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बना लूँ, आई मीन कॉपी कर लूँ, फिर काम करते हैं। याद रखिएगा कि हम इसको एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। सही। पहले हम क्या करेंगे, इसका वो माय गुडनेस, ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। चलें 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 चलें, ठीक है, ये है आपके पास। आप सब जानते हैं कि ये आपका एस्टर का बॉन्ड है और आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये OH ऑफ वाटर हासिल करेगा और ये H ऑफ वाटर हासिल करेगा, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। याद आया आपको? तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिनेरियो ये बनेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये CO पहले से था, इसने OH ऑफ वाटर हासिल किया, ये OH में कन्वर्ट हो गया। सही है। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये ऑक्सीजन एज इट इज, और ये हाइड्रोजन हासिल करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास मीडियम एल्कलाइन है, तो आप जानते हैं ये जो अल्कोहल है ये तो न्यूट्रल होता है, ये KOH से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस एल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो जब सॉल्ट बनाएगा तो वो सॉल्ट इस तरह से होगा। ओ, सो मुझे और आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कहां पर है। लेट्स टेली दिस प्रोडक्ट। देखो ये लिखा हुआ है OH, ये लिखा हुआ है OH, इसके साथ ये CH2, ये आया CH2, ठीक है। फिर ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH है, तो ये भी CH है। इस CH के साथ ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये C डब्लो नेगेटिव है, ये भी C डब्लो नेगेटिव है। इसका मतलब A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन, बॉन्ड टू बॉन्ड चेक करना है आपने बस। ऑब्वियसली बी भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि दिस नीड्स टू बी सॉल्व, दिस नीड्स टू बी सॉल्व। सॉल्ट सिर्फ दो जगह में है, इधर और इधर, या तो ए आंसर होगा या सी, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने बनाया उसके हिसाब से ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।
सी जो है वो भी गलत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप नोट करें ये है OH, तो ये है OH, फिर ये है CH2, तो ये आया CH2, उसके बाद CH2 है, राइट। एग्जामिनर ने यहाँ CH3 कर दिया, तो दैट्स द मिस्टेक। सही है, CH2 इज मिसिंग। आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, टोटल 6 कार्बन है यहाँ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो कार्बन दोनों में सेम है, लेकिन ये जो ब्रांच की पोजीशन है ना, ये एग्जामिनर ने यहाँ कर दी है, व्हिच इज रॉन्ग। सही है, ब्रांच की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। दैट्स टफ अगेन। 39, a section showing two repeating units of the addition polymer। भाई अगर एडिशन पॉलीमर है तो इसका मतलब वो तो एल्कीन में होगा, और एल्कीन में जब एडिशन पॉलीमराइज एल्कीन है तो इसका मतलब बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा इन मोनोमर। what is the identity of the monomer that produce this polymer। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को एज इट इज अपने पास ड्रॉ करते हैं। और जाहिर सी बात है बिटवीन द कार्बन एटम मोनोमर में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई यहाँ होगा बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड, ताकि इन दोनों कार्बन एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई कर दिए जाएं। आप नोट करें यही स्ट्रक्चर फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है ना। सो अब उसका वो कह रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ द नेम, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH3 C Cl डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन CH3। ठीक है भाई। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, फिर थर्ड कार्बन पे मिथाइल है तो 3 डैश मिथाइल, 4 कार्बन एटम की एल्कीन है तो ब्यूट 2 डैशीन। So right answer is going to be B. I think so. Yeah. यार देखो इसने डबल बॉन्ड है, ये कह रहा है ब्यूटेन, तो ये तो वैसे ही गलत। ये कह रहा है हेक्सेन, अबे भाई 1 2 3 4 5 कार्बन में हेक्सेन कहाँ होगा, तो ये भी गलत। एल्केन तो नहीं हो सकता है ना। अच्छा ये कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो वो कह रहे हैं पेंटुईन, तो ये भी गलत। आप ऐसे भी जज कर सकते हो। तो आप सिंपल ये बना के ये देख लो कि 4 कार्बन एटम की एल्कीन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर सिर्फ यही होगा ना, इस तरह से भी। यानी अगर आपको एग्जैक्ट नाम नहीं देना आ रहा तो आप ये देख लीजिए कि गलत कौन सा है। ओ माय गुडनेस, लास्ट क्वेश्चन। The relative atomic mass of antimony is 121.76. Antimony has two isotopes. The mass number of the two isotopes differ by 2. Oh. The isotope with the lower mass number is more abundant. Okay. तो जिस आइसोटोप का मास कम है उसकी अबंडेंस ज्यादा है। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप विद द हायर मास नंबर। यार ये हमने फॉर्मूला एक दिया हुआ है, उसके हिसाब से काम करते हैं। इसका एआर कितना है, 121.76। सो मान लीजिए कि इसका लोअर आइसोटोप जो है वो 121 है, और जो लोअर आइसोटोप है वो मोर अबंडेंट है। सही है। कितना अबंडेंट है हमें नहीं पता, तो हम 100 माइनस एक्स कर लेते हैं प्लस। और जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि जो लोअर आइसोटोप है उसके उसका जो सेकंड आइसोटोप है वो टू आइसोटोप्स डिफर बाय 2, यानी द मास नंबर ऑफ द टू आइसोटोप्स डिफर बाय 2। तो अगर इसका 121 है तो अगर मैं डिफर करूं तो वो 123 हो जाएगा, राइट।
आप सपोज कर लीजिए कि इसको हमने x दे दिया है डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल अबंडेंस 100 है। तो यहां से हम x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 38%। ठीक है, so 38% is the right answer. B is going to be the right answer. That's the end of this paper. Hope it makes sense to you. Thank you guys.